Hello everyone, welcome back to Pious Learning. Hope you have seen our previous video for class 11th. So we are going to start with the topic that is mathematical tools. Please do like, subscribe and share our channel with your friends so that we'll keep on posting these videos for class 9th, 10th, 11th and 12th. As you are aware that we post the videos for 9th, 10th science and 11th, 12th physics. So do like, subscribe and share our channel, and that really boosts our confidence of giving you a good work. So we are moving to the first topic without wasting much of the time, that is mathematical tools, which is very essential part, or which is the most important part, I would say, for studying the physics. Those who are beginning with physics will always find it to be the most difficult subject. So we are trying to ease out the burden by giving you all the basics which are required of the maths. Those who don't have maths and those who have opted for PCB, for them it will be very comfortable if they know all the graphs and like trigonometric ratios, then how to find out the values and so on. So we are beginning with the first topic, that is graph. In today's class we will discuss about graphs and so on. We'll move to various other mathematical tools like trigonometric ratios, like differentiation, integration in the upcoming videos. So the first video is about the graphs. So without wasting much of time, let's start with the graphs. You all have studied about graphs in class 10th, and you have studied about linear equation in two variables, and you plotted the graphs of those. है ना? That linear equation in two variables says y is equals to mx plus c. You have seen these kind of equation. This could be mx plus minus, where m represents the slope of the graph and c is the intercept on the y-axis. You must have heard these terms in the previous class 10th. ठीक है, y is equals to mx plus minus c. किस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा if I have y is equals to mx plus minus c? Let's begin, let's watch it. है ना, लीनियर ग्राफ है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, है ना, क्योंकि लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है. y इज प्रोपोर्शनल टू x ऑन अ सिंगल प्रोपोर्शनैलिटी. तो मुझे फिजिक्स में कैसे चाहिए? जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे सिंगुलर प्रोपोर्शनैलिटी पे चलेगा तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा. ठीक है, जब इस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी होगी देन आई हैव अ लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होगा? इफ आई लुक इन टू दिस ग्राफ, अगर मैं ये वाले ग्राफ को देखती हूँ और इफ आई टेक द ग्राफ लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू एम एक्स ओनली, c इज इक्वल्स टू 0 ले ले अगर हम, इस सिचुएशन में क्या है? c 0 मतलब जब x 0 तो y 0. यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 4x ले लेते हैं. तो when x is equal to 0, y is also 0. When x is equals to 1, y is equals to 4. When x is equals to 2, y is equals to 8. तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? This will give me such kind of graph. यहाँ y, यहाँ x 0 से स्टार्ट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. जब x 0 है तो y भी 0 है. जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. If x is increasing, y is also increasing. Let's take the example. Let's take the example from the physics itself and from electricity itself that you have studied. है ना, इसी y is equals to mx वाला first discussion है मेरा, और इसी पे आ रही हूँ मैं. इसका एक एग्जाम्पल लेंगे. v is equals to IR, ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा है ना? यू स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी. जब R कांस्टेंट रहेगा, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. एंड यू नो दैट ओम्स लॉ में आपको ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब I 0 तब V भी 0. इज इट नॉट कंपेयर? ये आप कंपेयर कर पा रहे हैं y इज इक्वल्स टू mx से, where m represents the slope, और यहाँ पे आपकी slope क्या है? What is the slope of the VI graph gives you? It gives you resistance. So slope of VI graph gives you resistance. ये मेरा first type, that is y is equals to mx. पहली situation consider करी मैंने जब c मेरा 0. Let's now
consider the second situation. ये first situation है. Let's get to second situation. In the second situation, let's take C positive. है ना? We have the equation y is equals to mx plus c. Consider any general equation. Y is equals to 4x plus 2. So when x is equals to 0, your y will be 2. है ना? जब x 0 है तो y क्या वैल्यू लेगा? 2 लेगा. जब x 1 हो जाएगा, y will take the value 6 and so on. If I plot such type of graph over here, इधर x और इधर y, तो ये ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट करके कैसे स्टार्ट करेगा? थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेगा. एंड दिस विल रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट C. दिस विल रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट C, विच इज जब x 0 है तो जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी? इंटरसेप्ट. एंड हेयर C इज पॉजिटिव. इस सिचुएशन में C क्या है? पॉजिटिव है. इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है. बट देयर कुड ऑल्सो बी अ सिचुएशन व्हेन योर इंटरसेप्ट इज नेगेटिव. योर इक्वेशन कुड बी y इज इक्वल टू mx माइनस c. लेट्स कंसिडर द थर्ड सिचुएशन. लीनियर ग्राफ की ही डिस्कशन कर रहे हैं अभी. पैराबोलिक हाइपरबोलिक कर्व्स पे नहीं जा रहे. वी आर डिस्कसिंग ओनली द लीनियर ग्राफ राइट नाउ. पहली सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं. दूसरी सिचुएशन में c क्या लिया था? पॉजिटिव. लेट्स नाउ टेक थर्ड सिचुएशन when y is equal to mx minus c. जब इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया. अब अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वे. अब ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा. और अभी इंटरसेप्ट क्या होगी? माइनस c, नेगेटिव. This is the situation when y is equals to mx minus c. So I'll get back to this again. जब c नहीं होगा, graph will start from the origin. जब direct proportionality है, साथ में कोई constant नहीं है, it will start from origin. लेकिन जब एक constant रहेगा, एक intercept रहेगा, तो we can mark it positive as well as negative. ये मेरे दो ग्राफ. ठीक है जी. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ. अभी इन तीनों ही ग्राफ में m क्या था? पॉजिटिव था. स्लोप क्या था? पॉजिटिव. बट देयर कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इन विच द स्लोप इज नेगेटिव. है ना? देयर कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी व्हेन द स्लोप विल बिकम नेगेटिव. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. फोर्थ केस फॉर द लीनियर ग्राफ, स्लोप नेगेटिव या फिर m negative situation would be y is equals to minus mx. This could be the situation y is equals to minus mx plus c, or c could be 0 as well. In this situation what do you observe? यहाँ पे x, यहाँ पे y. Proportionality linear ही है. Proportionality linear ही है but slope negative है. Slope negative shows कि when x is increasing, y is decreasing. जैसे जैसे x, you can take the example, y is equal to minus 4x. When x is equals to 0, y is equals to minus 4x ले लेते हैं. x is equals to 1, your y is equals to minus 4. When x is equals to 2, your y is equals to minus 8 and so on. तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. In this situation, there could be plus c as well, or we can write down plus 8 so that you will get the positive terms. And you will be justifying this graph. Is it clear? So these are the 4 linear graph that you should be aware, because as we start with the chapter number 1, वहाँ पे हम जब motion कराते हैं तो distance displacement, when the object is moving upward, then what happens? Then velocity is decreasing, and it reaches to the highest point, the velocity becomes 0 and then it start coming back. तो वहाँ पे जब ये वाले graphs plot कराते हैं तो we plot these kinds of graph. So we need it. उस टाइम पे हमें ये सारे लीनियर ग्राफ्स जो हैं वो चाहिए होते हैं जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं. सो यू शुड बी अवेयर कि कब स्लोप नेगेटिव होगी तो कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव होगी तो कैसा होगा, स्लोप अगर कांस्टेंट इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कैसा रहेगा, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा रहेगा. लेट्स नाउ मूव टू पैराबोलिक कर्व. नाउ when your object will follow a parabolic curve, whenever there is a
क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये तो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी थी, लेकिन जैसे ही स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी वैसे ही ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, सो पैराबोलिक कर्व्स, अलग अलग तरीके के पैराबोलिक कर्व्स होते हैं। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। विल टेक फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई। कैन यू सी ओवर हेयर, फॉर वन वैल्यू ऑफ y x can take, if x square is equals to ky, what can you write down? For y is equals to 1, if I write down this, x square is equals to 4y. For y is equals to 1, x square is equals to 4, or x can take two values, plus minus 2. For each value of y, your x can take two values. So you can plot this graph like this. अगर इधर x हो और इधर y, so for one particular value of, I think I have, for one value of y, yes, I have plotted it correct. For one value of y, there are two values of x, plus 2 and minus 2. Can you make out? For one value of y, there are two values of x. So it will be a parabolic curve and you can see the parabola. At times हमें सिर्फ पॉजिटिव भी बनाना आता है, ठीक है, वन साइड भी बनाना आता है. So parabolic curve could also be marked as y and x. So I can draw it like this as well. ये मैंने दोनों साइड दिखाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव. We can also draw it like this. I'll give you one example of a parabolic curve from this electricity only, because I guess from class 10th you remember this chapter only ना. अभी you don't remember about 9th का motion, distance, displacement बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा, but हाँ electricity because अभी अभी पढ़ा है तो you remember it. Let's take the example of P is equals to I square R. You remember this result? Power is equals to I square R. If our resistance of the wire is kept constant, if I ask you to plot a graph between power and I, how will you plot? ठीक है? If R is kept constant and I ask you to plot a graph between P and I, can you compare this P and I with x square and y? What is your y over here? Your y is P and your x is I. Just compare this equation with this. Nothing you have to do. Just compare this equation with this. So on the y-axis you will plot power and on the x-axis you will plot current. ये x-axis पे आपने current plot कर दिया और यहाँ पे पावर प्लॉट कर दी. क्योंकि स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक अ पैराबोला. तो आपको समझ आया लीनियर कब बनाना है? जब सिंगल प्रोपोर्शनैलिटी हो. जैसे v प्रोपोर्शनल टू i था, यही अगर मैं आपको p प्रोपोर्शनल टू p इज इक्वल्स टू वी आई लिख दूं और बोलूं कि v इज कांस्टेंट है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए पावर और करंट के बीच में ग्राफ बनाइए, है ना. आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल लाइक दिस, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखिए और पावर और करंट के बीच में ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप? इधर पावर डालेंगे, इधर करंट डालेंगे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे. क्योंकि क्या है, ये सिंगल प्रोपोर्शनैलिटी है ना. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. P बढ़ रहा है, I भी बढ़ रहा है. P कम होगा तो I भी कम होगा. ये क्या है? स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है. जब P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, तो जब जब स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी होगी तब तब पैराबोलिक कर्व बनेगा. जब जब सिंगुलर प्रोपोर्शनैलिटी होगी तब तब स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा. और स्ट्रेट लाइन कर्व में भी 4 तरीके के कर्व्स पढ़े आपने कि कैसे बनाना है. अगर बढ़ रहा है तो स्लोप ऊपर की तरफ दिखानी है, अगर कम हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव दिखानी है, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y के ऊपर से स्टार्ट करना है, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो फिर y एक्सिस बिलो से स्टार्ट करना है. तो यू कैन नो आपको क्या करना है. सो यू अंडरस्टैंड दिस पैराबोलिक कर्व. ये तो सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई बनाया. वी कैन ऑल्सो टेक इट एज वाई इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स, के एक्स स्क्वायर. उसमें क्या हो जाएगा, वो के ऊपर आ जाएगा. देखो जरा एक बारी. लेट्स कम ओवर हेयर, लेट्स गेट टू सेकेंड ऑफ द पैराबोला.
सेकेंड केस में अभी तो मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई लिया था, आई वुड हैव टेकन वाई इज इक्वल टू केस एक्स स्क्वायर. अब इसमें क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी, सॉरी ये गलत लिखा ना मैंने, पहले भी तो यही लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई. अभी आई शुड राइट डाउन एक्स इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर. ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स. आई कैन राइट डाउन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स, और आई कैन राइट डाउन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सो दिस ग्राफ will be on the, for one value of x there will be two values of y. For one value of x there will be two values of y. So graph जो है it will take this kind of parabola, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए there will be two values of y. ऐसा बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा. उस वाले में मतलब यहाँ अगर नेगेटिव लगा देंगे तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा, माइनस वैल्यूज लेगा एक्स की. इज इट क्लियर? और वैसे ही वहाँ पे भी कर लेंगे. सो दीज आर द पैराबोलिक कर्व. लेट्स नाउ मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ कर्व, दैट इज हाइपरबोलिक कर्व. हाइपरबोलिक कर्व तब होता है जब मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो. ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व तब बनेगा जब y is inversely proportional to x और x is inversely proportional to y. ठीक है, जब इस तरीके की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटीज चलेंगी तब हाइपरबोला होगा. और इनवर्स में इट कुड बी 1/x, इट कुड बी 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब. पावर्स बढ़ने से सिर्फ स्लोप में चेंज आएगा, कर्व विल रिमेन हाइपरबोला ओनली. ठीक है, तो जब इस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी हो या फिर एक्सपोनेंशियल भी हो, y इज इक्वल्स टू के ई की पावर माइनस mx, इस तरीके की भी प्रोपोर्शनैलिटी हो, तब भी इन ऑल दीज सिचुएशंस आई विल अंडरगो हाइपरबोलिक कर्व. सो x ओवर हेयर, y ओवर हेयर, सच काइंड ऑफ हाइपरबोलिक कर्व विल बी ड्रॉन. ठीक है, आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है जब इनवर्स की प्रोपोर्शनैलिटी होगी, वो भले ही स्क्वायर के साथ भी क्यों ना हो. लेट्स टेक वन एग्जांपल, है ना. अगर मैं आपको शायद ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. है ना, दो मासेस के बीच में अगर आप इस तरीके से फोर्स लिखते हैं, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो यू विल गेट g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. इफ आई आस्क यू टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, अगर मैं आपको f और d के बीच में ग्राफ बनाने को बोलूं, व्हेन द मास ऑफ द टू बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, तो व्हाट डू यू प्लॉट? क्या प्लॉट करेंगे? कैन यू सी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. कैन यू कंपेयर दिस ओवर हेयर? इट शुड बी अ हाइपरबोलिक कर्व. यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे डिस्टेंस, एंड दिस विल बी द कर्व. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा. सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड मास, इसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि एक मास जो है दैट इज केप्ट ऑन वेयरिंग, दूसरे मास को कांस्टेंट रख लीजिए और डिस्टेंस को भी कांस्टेंट रख लीजिए, तब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स और मास का, तो वो क्या होगा? जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा. जब मास जीरो है तो फोर्स भी क्या है? जीरो है. सो दीज आर द ग्राफ दैट यू नीड टू नो. In the next class, we will discuss about the trigonometric ratio. That is also one of the important tool for physics studying. Okay, bye-bye everyone. Keep watching Pice Learning.